तो সকল के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज भी हम बंगाली हिंदी दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे और जो हम लोगों ने कंप्लीट किए थे इससे पहले, जो पहले वाला मैं दिखा देती हूँ एक बार। एज ऑफ रोमांटिसिज्म लास्ट जो थे ओ वर्ल्ड ओ दिस वन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। सो उससे पहले प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटारेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन আপডেটস। প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন আর দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার, আর বেল আইকনকে প্রেস করে রাখুন যাতে করে কোনো রকম আপডেट्स मिस ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए एसपी लिटरेचर को और जुड़े जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो पहले हम लोग बंगाली में बोल लेते हैं, फिर हिंदी में बोलते हैं। यूजीसी नेट एंड जेआरएफ जून 2025 দি এজ অফ রোম্যান্টিসিজম। এই অবধি আমরা গতকাল একটা ভিডিও আমি শেয়ার করেছিলাম যেখানে আমি বলেছিলাম যে সিলেবাস কভার করার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু বিষয় থাকে যেগুলো আমাদেরকে মাথায় রেখে এগোতে হয়, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়। তো এই সময়কালীন আমরা ওয়াল্টার স্কটকে পেয়েছি এবং ওয়াল্টার স্কটের যে লেখাগুলো এখানে দেখা যাচ্ছে এগুলো আমাদেরকে পড়তে হবে। তারপর হচ্ছে ওয়েভারলি, গার্মেন্ট, রব রয়, আইভানো, এগুলো সবগুলোই খুব ইম্পর্টেন্ট। এগুলো সামারি করে রাখতে হবে, আবার কোনোটা একটু ডিটেল পড়তে হবে। তারপর হচ্ছে আমরা জর্জ গর্ডন, লর্ড বায়রনকে পড়বো। লর্ড বায়রনের এই লেখাগুলো আমাদের পড়তে হবে। তার মধ্যে চাইল্ড হার্ডস পিলগ্রিমেজ পার্ট 1, পার্ট 2, পার্ট 3 আলাদা আলাদা করে আছে লেখা। তারপর এখানে আমরা বেপ্পো থেকে প্রশ্ন দেখেছি ইউজিসি নেটে, লাস্ট 6 বছর আগেও দেখেছি, 5 বছর আগেও দেখেছি। বেপ্পো, ম্যানফ্রেড, ডন জুয়ান, মেজাপ্পা, এগুলো পড়তে হবে। ভিশন অফ জাজমেন্টস, বায়রনিক হিরো কাকে বলে এই কনসেপ্টটা পড়তে হবে। পিবি শেলির এই লেখাগুলো আমাদেরকে পড়তে হবে। তার সাথে হচ্ছে এখন আমরা চলে যাচ্ছি পরের পেজে। সেটা হচ্ছে যে আজকে এটা এইমাত্র আমি লিখে নিয়ে এলাম। জন কিটসের প্রথমে ব্যাকগ্রাউন্ড পড়তে হবে, বায়োগ্রাফি পড়তে হবে, হিস্ট্রি মানে ওনার একটু জীবনটা নিয়ে আমাদের একটু পড়তে হবে। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোটেশনস পড়তে হবে, কারণ শেলি, কিটস, বায়রন, বিশেষ করে কিটসের ক্ষেত্রে আমরা কোটেশন দেখতেই পাই, শেলির ক্ষেত্রেও। তারপর এগুলো হচ্ছে কিটসের লেখা, এগুলো আমি কোনোটাও বলতে পারবো না লেস ইম্পর্টেন্স বা মোর ইম্পর্টেন্ট, এটা পুরোটাই ইম্পর্টেন্ট, সবগুলোই পড়তে হবে ডিটেলে। এবং এই যে ওটগুলো কবে পাবলিশ হয়েছে সেই ডেটটাও কিন্তু চেয়েছিল, এটাও একটা প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন। থমাস লাভ পিককের দুটো লেখা আমরা পড়ছি এখানে। তারপর ককনি স্কুল অফ পোয়েট্রিতে একটা গ্রুপ আমরা দেখতে পাচ্ছি, কোন 4 জন আছে সেটা পড়তে হবে, এখান থেকে প্রশ্ন চাওয়া হয়, এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন। চার্লস ল্যাম্বের লেখা এগুলো। তার মধ্যে চার্লস ল্যাম্বের সব থেকে পড়তে বলবো আমি এসেস অফ ইলিয়ার মধ্যে আমরা কতগুলো এসে দেখতে পাই, লিস্ট অফ পপুলার এসেস, এটা মনে রাখতে হবে আমাদেরকে। নেক্সট আমাদের থমাস ডি কুইন্সির কনফেশনস, যেগুলো 5 স্টার দেওয়া আছে, অন দ্য নকিং অ্যাট দ্য গেট অফ ইন ম্যাকবেথ। তারপর হচ্ছে আমরা আর কি পড়বো, দি ইংলিশ মেইল কোচ, জেন অস্টিনকে পড়তে হবে। জেন অস্টিনকে কীভাবে পড়বো, এই যে 5টা নভেল আছে এই 5টার ক্রোনোলজিক্যালি রেডি রাখতে হবে, ডেট মানে কবে পাবলিকেশন ডেট হয়েছে না হয়েছে সেটা রাখতে হবে। তার সাথে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে জেন অস্টিনের কোনটা লেখা আনফিনিশড মানে অসমাপ্ত রেখে উনি চলে গেছেন, সেটা স্যান্ডিশন আর আদার ওয়ার্ক পারসুয়েশন উনি নিজেই লিখে গেছেন, এগুলো গুগল করে পড়া। আর তারপরের সঙ্গে আমি বলবো জেন অস্টিনকে ক্রোনোলজিক্যালি ক্যারেক্টারের দিক থেকে, তারপর হচ্ছে পাবলিকেশন ডেটস, আনফিনিশড ওয়ার্কস, এগুলো সব আমাদের আলাদা আলাদা করে মনে রাখতে হবে। আর এর জন্য আমি বলবো যে এসপি লিটারেচারের শর্ট ভিডিও হচ্ছে সব থেকে খুব হেল্পফুল হবে, কারণ চার্লস ডিকেন্স আর জেন অস্টিন থেকে প্রশ্ন আসে না, এরকমটা হতেই পারে না নেট সেট গেটের ক্ষেত্রে। তো এগুলো থেকে প্রশ্ন চাওয়া হয়। এবং আবার আরেকটা জিনিস লিখতে ভুলে গেছি আমি জেন অস্টিনের ক্ষেত্রে, কোটেশনস খুব ইম্পর্টেন্ট, এগুলো পড়তে হবে। এবং আমি এখানে আরও বলে দিচ্ছি আমি নেক্সট দিন কী নিয়ে আসবো। নেক্সট দিন আমি ভাবছি যে আমরা তো মোটামুটি রোমান্টিক পিরিয়ড কমপ্লিট করলাম, অ্যাংলো সেকশন বা ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ড থেকে রোমান্টিক পিরিয়ড অব্দি আমরা কমপ্লিট করলাম লিস্ট ব্রিটিশ লিটারেচারের। এখন তোমাদের বা আপনাদের বা তোদের দায়িত্ব হলো এগুলোকে পড়া। তো আমি মনে করছি যে পেপার 1-এ ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন বা কিছু প্র্যাকটিক্যাল জিনিস নিয়ে আসবো, আর পেপার 1 পেপার 2 দুটোরই আমরা প্রত্যেকটাই কভার করব এক্সামের আগে। তো ভিক্টোরিয়ান থেকে গেল, মডার্ন, পোস্ট মডার্ন আর কারেন্ট কিছু জিনিস বলবো। তার মধ্যে এসপি লিটারেচারে অনেক কিছু আছে যেটা নিয়ে একদিন হয়তো আমি ভিডিও নিয়ে আসবো এরকমভাবে পেপার 2 আলোচনার সময়, যে কী কী জিনিস এসপি লিটারেচারে আছে বা কী কী রেডি করা আছে যেগুলো থেকে ডিরেক্ট তোমরা হেল্প পাবে। এবং ডিরেক্ট পড়লে নিজেকেও নোট বানাতে হবে না, ওখান থেকে পড়লেও যথেষ্ট, অনেকটাই মানে লিখে পড়তে পারলে ভালো, কিন্তু ওখান থেকে পড়লেও অনেকটা কাজে দেবে এক্সামের আগে। সেক্ষেত্রে আমি কিছু হিন্টস দিয়ে দিই, ওখানে কিন্তু
নোবেল প্রাইজ উইনার, পুলিৎজার প্রাইজ উইনার, ক্রিটিসিজম, তারপর হচ্ছে কোনো একটা টপিক নিয়ে পড়ানো। জেন অস্টেনের ম্যানসফিল্ড পার্কটাকে আমি হয়তো ডিটেইলে পড়িয়ে রেখেছি সামারি, এটা প্রায় 9 মাস 1 বছর আগের ভিডিও। ম্যানসফিল্ড পার্ক প্রথম দিকে সামারি বলে রেখেছি খুব ভালো করে। তো এগুলো একটু নিজেকে চ্যানেল পেজ বা ইউটিউবের সার্চ বারে গিয়ে সার্চ করতে হবে যে এর ওরকম ফ্রম এসপি লিটারেচার, যাই লেখো ফ্রম এসপি লিটারেচার লিখলে এসপি লিটারেচারের ভিডিওগুলো শো করবে। ঠিক আছে, তো এগুলো আমি এখন বাংলায় বললাম, এখন হিন্দিতে বলে আজকে অফ করব। এগুলো সব বললাম, এখন প্রত্যেকটা আমি মুখে মুখে আশা করছি বোঝা যাচ্ছে। হাতের লেখা আমার খুব বেশি ভালো নয় আমি জানি, কিন্তু আমি এটুকু জানি যে বোঝা যায় এবং বানান ভুল নেই, এটুকু আমি বলতে পারি। এর থেকে বেশি কিছু বলতে পারবো না, কিন্তু অসুবিধা হলে তুমি বা তোমরা, আপনি বা আপনারা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাতে পারেন, আমি নিশ্চয়ই উত্তর দিয়ে থাকি এবং দেবো। তো এটাই আমি এখন হিন্দিতে বলছি। तो आप सभी लोगों को स्वागत है, और आज मैंने लेकर आई है एज ऑफ रोमांटिसिज्म के। हमने जो वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज को कवर किए थे, उसके बाद जो ड्यू थे, मतलब उसके बाद जो हम लोगों को कवर करनी थी, वो मैं आज लेकर आई। यस्टरडे को मैंने एक वीडियो पोस्ट की, क्योंकि यस्टरडे को सिचुएशन कुछ ठीक नहीं थे, मुझे शूट मतलब ये पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो बनाने की सिचुएशन नहीं कर पाई, इसलिए पहले एक वीडियो बना के रखी थी मैं, वही वीडियो को दे दी। और जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस कवर करना, एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना, सब कुछ की तरह ही वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने हिंदी में ऑलरेडी बोल दी कि जून की एनर्जी बूस्टर इज जेआरएफ, और इसे ही बंगाली में ही सेम वीडियो बना के दी यस्टरडे को। और आप लोगों को मैं एक बात बताऊँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लिज टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटारेचार। প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন। তোমরা সাবস্ক্রাইব করছো না, কেন করছো না? কারণ আমরা প্রচুর কিছু শেয়ার করছি, আরও করব নেট সেট গেটের বিষয় এবং আদার্স যদি কোনো বিষয় থেকে সেটাও ইনফরমেশন আমরা দিয়ে থাকি, পরীক্ষা সংক্রান্ত বা আদার্স যে কোনো কিছু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বা যে কোনো কিছু মানুষ আমাদের জীবনে লাগবে গুরুত্বপূর্ণ, আমরা বলে থাকি সব ধরনের কথাই। তো তোমরা প্লিজ লাইক কমেंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देवे। आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जुड़े रहिएगा इस भी लिटरेचर के साथ, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो। প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে বেল আইকনকে প্রেস করে রাখবেন বা রাখবে, যাতে করে কোনো আপডেट्स मिस ना हो। प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। तो यहाँ पे वॉल्टर स्कॉट के मैंने ये जो लिखे वो थोड़ी आप गूगल करके पढ़ो, और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल्स वेवरली, गायमनरिंग, रॉबरा, आइवनो, ये हार्ट ऑफ मिडलोथियन, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कह सकती इसको छोड़ो उसको छोड़ो, सारी इसको नॉवेल्स को पढ़ो, और ये सारी थोड़ी गूगल करके रखो पहले। फिर जॉर्ज गॉर्डन, लॉर्ड बायरन, इनके सभी राइटिंग्स को गूगल करके रखो। इसके साथ साथ आप लोगों को मेजप्पा, बेप्पो, डॉन जुआन, मैनफ्रेड, विजन ऑफ जजमेंट, इन सारी चीज़ों से प्रीवियस ईयर में 5 से 6 साल पहले भी क्वेश्चंस देखने को मिले थे, 10-15 साल 20 साल पहले भी क्वेश्चंस देखने को मिले, अभी भी देखने को मिल रहा है। तो प्लीज़ पढ़ो, और बायरोनिक हीरो के कंसेप्ट को अच्छे से खुद पढ़ो, जहाँ से भी हो पढ़ो, जहाँ से भी रिसोर्सेज हो। फिर पीबी शैली के ये सारी चीज़ मैं नहीं कह सकती पीबी शैली की इसको छोड़ो उसको छोड़ो, पीबी शैली को डिटेल में पढ़ो, और उसके साथ साथ आप लोगों को कोटेशंस भी पढ़नी है शैली की। मैं जो यहाँ पे लिखना मिस करके मैं जो वर्बली बोल रही हूँ इसको इम्पोर्टेंस देना प्लीज़, नहीं तो आप लोगों से चूक गई तो मार्क्स भी चूक जाएंगे। फिर आज मैंने ये लेकर आई जॉन किट्स के बैकग्राउंड स्टडी करो, बायोग्राफी उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ स्टडी करो, हिस्ट्री को पढ़ो उनके बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशंस कीट्स, शेली, इन सारे पोइट्स को, इन सारे राइटर को, ऑथर को हम नहीं छोड़ सकते, इनके कोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इनके पोएम्स जो लाइक शेली की तरह मैं किट्स के बारे में भी कहूँगी, ये सारी चीज़ों में से मैं नहीं कह सकती ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है ये लेस है, मैं नहीं कह सकती, इन सारी चीज़ों अच्छे से पढ़ो। ओट जो है, ओट कौन सी ईयर में आए थे वो भी एक प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थॉमस लव पीकॉक भी एक प्रोमिनेंट फिगर है, इनके ये 2 इंपॉर्टेंट वर्क्स है। कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री में हमें 4 इंपॉर्टेंट फिगर देखने को मिल रहे हैं, इसको याद रखो, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और पूछे जा सकते हैं। चार्ल्स लैम्ब के ये सारी चीज़ें पढ़ो, उसके थोड़ी गूगल करके रखो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेस ऑफ इलिया को पढ़ो, और ये जो एसेस ऑफ इलिया में मोस्ट पॉपुलर एसेस है इसकी लिस्ट को दी है, इसको थोड़ा पढ़ो अच्छे से। थॉमस डी क्विंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो 5 स्टार दिए हैं 3 वर्क्स, इनको डिटेल में पढ़ो, और बाकी सब थोड़े गूगल करके रखो। जेन ऑस्टिन तो मैं अब उनके लिखा को अलग से स्टार मार्क नहीं देकर लेकर आई, क्योंकि जेन ऑस्टिन खुद ही एक ऐसी फिगर है, चार्ल्स डिकेंस, जेन ऑस्टिन, इनके अलावा इनके वगैरह हम यूजीसी नेट से गेट के क्वेश्चंस के बारे में सपनों में भी नहीं सोच सकते। तो इनके ये जो 5 नॉवेल है इसके क्रोनोलॉजिकली स्टडी करो, और कौन सी वर्क अनफिनिश्ड है, कौन सी वर्क अब अच्छे तरीके में उन्होंने लिखी और किस तरीके से उन्होंने पब्लिश की, मरने से पहले पब्लिश की, मरने के बाद पब्लिश की, उसको हम क्या कहते हैं, इसको पढ़ो। और यहाँ पे आप लोगों को जेन ऑस्टिन को क्रोनोलॉजी, कैरेक्टर्स, पब्लिकेशन डेट्स,
अनफिनिश्ड वर्क इस तरीके से प्रिपेयर करनी होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं मिस कर गई जो कि कोटेशंस को प्रिपेयर रखो, क्योंकि जेन ऑस्टिन से चार्ल्स डिकेंस से कोटेशन ना पूछे जाए, कैरेक्टर्स ना पूछे जाए, क्रोनोलॉजी ना पूछे जाए, ऐसे तो हो ही नहीं सकते। इन दोनों के बगैर हम सोच ही नहीं सकते। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। मैं हमेशा जेन ऑस्टिन के साथ चार्ल्स डिकेंस को लेकर आती हूँ, क्योंकि इनके बहुत कैरेक्टर्स क्रोनोलॉजिकली पूछे जाते हैं, इसीलिए कोटेशंस भी साथ में। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। आज हम लोगों ने कवर किए रोमांटिक पीरियड, ओल्ड इंग्लिश पीरियड टू एंग्लो सेक्शन पीरियड, जैसे हम लोगों ने रोमांटिक पीरियड तक खत्म किए। अभी हमारे हाथ में है पोस्ट मॉडर्न पीरियड, विक्टोरियन पीरियड, मतलब विक्टोरियन, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न। उसके साथ मैं कुछ करंट अफेयर्स को भी बताऊंगी, क्योंकि लास्ट 3 साल में, 2 साल, 1 साल में क्या हो रहा है लिटरेचर में, वो भी सारी चीज़ स्टडी करके आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी एग्जाम से पहले। उसके साथ साथ मुझे अभी लग रहा है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आऊँ। क्या लेकर आऊँ? मैं आप लोगों के लिए पेपर 1 के डेटा इंटरप्रिटेशन कुछ प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं अगले दिनों में। ओके, मुझे ये करने की सोच आ रही है और मुझे लग रही है कि करना भी चाहिए। और साथ में आप लोगों को ये जो ड्यू बाकी रह गए ब्रिटिश लिटरेचर के, इसको भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी एग्जाम से पहले। पेपर 1 के भी प्रैक्टिकल पोर्शंस करेंगे तो हमारे कुछ पेपर 1 भी कवर हो जाएंगे, और सारे काम तो मैं खुद करूँगी तो मुझे ही फ़ायदा होंगे। आप लोगों को क्या फ़ायदा होंगे? आप लोगों के फ़ायदा के लिए आप लोगों को ये सारी गाइडलाइंस पे फॉलो करके आप लोगों को खुद को प्रिपेयर करनी होगी, तभी जाकर आप लोगों को एक अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं यही कहूँगी कि टेलीग्राम चैनल एसपी लिटरेचर यूजीसी ने टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ। अभी मैं थोड़ा रेगुलरली पोस्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ करूँगी, बाद आने वाले दिनों में ज़रूर करूँगी। और आप लोग एसपी लिटरेचर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले। आप लोगों को हेल्प करने के लिए ही हम यहाँ पे हैं। आप लोग भी सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे तो बहुत अच्छा लगेंगे, और आगे बढ़ने में, एक साथ आगे बढ़ने में कुछ अलग ही मजा है ना। तो फिर यही है। और मैं गेट के बारे में भी हम टाइम पे पेपर 1 पेपर 2 को लेकर, पेपर 2 तो इसके साथ ही चलो इंग्लिश लिटरेचर पेपर 1 को लेकर आएंगे। सेट के बारे में भी अलर्ट आप लोगों को करते रहेंगे। और एसपी लिटरेचर पे बहुत सारी चीज़ आप लोगों को लेके, जेन ऑस्टिन, चार्ल्स डिकेंस के कोटेशंस, कैरेक्टर्स, पब्लिकेशन डेट्स, क्रोनोलॉजी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। आप लोगों को कुछ सर्च करके जाना है, मतलब कि आपको थोड़ी कष्ट करके इस लिटरेचर के चैनल पेज में जाके 1 साल पहले वाला 9 मंथ, 8 मंथ, 10 मंथ्स पहले वाला वीडियो को देखनी है, और स्पेशली शॉर्ट वीडियो को भी आप लोगों को देखनी है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ क्रोनोलॉजिकली मिलेंगे, जो कि मैंने 2024 में गेट एग्जाम से पहले खुद प्रिपेयर करके गई थी। वहाँ से ही क्वेश्चंस दिखने को मिले एग्जाम हॉल में जाकर 1 घंटे बाद, मतलब वीडियो बनाई 2-4 दिन पहले, और एग्जाम के दिन का जब मैं ट्रैवल कर रही थी, देखते देखते जा रही थी, और एग्जाम में हॉल में जाकर भी मुझे वही देखने को मिले थे। और सही में मैंने वो क्वेश्चंस की थी सही। वो अलग बात है कि हमने उस टाइम कुछ गलतियां हुई थी, बट इट इज़ ओके, जिसके लिए मार्क्स कमी थी। ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाले हैं एसपी लिटरेचर। और पुलित्जर प्राइज, नोबेल प्राइज विनर के लिस्ट, और क्रिटिसिज्म, और कुछ मैन्सफील्ड पार्क के डिटेल स्टडी बंगाली में है। तो आप लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे तो आपके, मैं कह सकता हूँ 50% सिलेबस तो ऑलरेडी एसपी लिटरेचर से ही कवर हो जाएंगे एकदम आसानी से, ईजिली, आप लोग अगर अच्छे से पढ़ोगे। और बाकी आप खुद से वीडियोस देख के नोट बनाओ, थोड़ी थोड़ी करके वहाँ से वीडियो से ही कवर करो, ये आप लोगों के ऊपर। और जो भी रिसोर्सेज से पढ़ो, मेरे लिए एक ही बात है कि अच्छे से पढ़ो और मल्टीपल रिविजन्स लगाओ, खुद पे बिलीव रखो, खूब काम, कूल एंड पेशेंस रखो, सब कुछ हो जाएगा ठीक तरीके से। ठीक है, धन्यवाद। आज के पर्यंत नमस्ते सभी को, आज के लिए इतना ही। प्लीज टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और एसपी लिटरेचर को देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। प्रचुर परिमाणे लाइक, कमेंट, शेयर এবং সাবস্ক্রাইব করুন। দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। হিন্দিতে বাংলাতে দুটোই মানে দুটো ভাষাতে একটাই কথা বলবো যে এসপি লিটারেচারে অনেক কিছু দেওয়া আছে, যা তোমাদের আপকামিং एग्जामेर জন্য 50% ऊपर सिलेबस कवर করে रखा আছে, अवश्य हेल्प करবে। यही मैं कहूँगी आप लोगों को, एसपी लिटरेचर पे इतने सारी चीज़ें कवर है कि आप लोगों को आने वाले एग्जाम के लिए, आने वाले सालों में जितने भी एग्जाम्स होंगे 50% से भी ज़्यादा सिलेबस यहाँ पे कवर हो चुके हैं, और आप लोगों को हेल्प डेफिनेटली करेंगे। और आने वाले दिनों में मैं एग्जाम से पहले बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ, सो इसलिए आप लोगों को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो पड़ेगा ही। नमस्ते सभी को, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, शुभरात्रि, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। सभी को नमस्ते, सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहिए एसपी लिटरेचर। थैंक यू ऑल, टेक केयर।